See, खुदा में मेरे अज़ीज़, so my dear brothers and sisters in Christ, let me, before I come towards my message on this wonderful feast of the birthday of Mary, begin by expressing my joy and gratitude to the parish priests, the priests, sisters, and to all of you gathered here. Mr. Ignello, while I was vesting, came and told me it is the 47th anniversary, 46th or 47th. I thought it was his wedding anniversary. But I think what he was trying to tell me is the novenas. Wow. I have been in Multan, worked there for 7 years. My life has been here in Karachi. What I have seen is the faith of the people when it comes to Our Lady. Even Multan, where people were poor but had to travel much more than you, my dear people, much more than you, they would be there in great numbers when it was the feast of Our Lady. In fact, in the Punjab, it is called Ziyarat, and you just have to say the word Ziyarat and everyone is ready not only to come but to contribute and to do everything they want to Our Lady. What a wonderful spirit. And I often joke that parish priests at this time of the year are requesting people not to come to church. Why? Because the church is overpacked, telling them go to that church, go to that church. Why? Because people come in great numbers. I wish to congratulate you, people of St. Anthony's Parish, because it was in the Archdiocese of Karachi, it was here that the Novena tradition began with solemn, with fervor, and it has been maintained right up till today. Today, His Eminence Cardinal Joseph Coots is in St. Pat's. I am here. In fact, he should be here, I should be there. But not only was Father Arthur very early to catch me, but also I told others who would come to me that no, for the 8th of September, I am coming here. Just to maintain that wonderful fervor and joy to be with you, because here in the Archdiocese of Karachi, it was from here that this novena has spread. And mind you, यहाँ पे बहुत से उर्दू स्पीकिंग बैठे हैं. St. Pat's, there was a लड़ाई कि जी हम आ रहे नवीना के लिए, हमारी ज़बान में नहीं. They had to change bilingual there in Urdu because bigger crowds all around in Karachi. Novenas have been being held in all parishes. Crowds have been coming. Why? That's the miracle of Mary. मसीह खुदा में मेरे अज़ीज़ों, ये वाकई मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मत की बात है कि दोबारा मैं आपके साथ हूँ. उम्मीद है आपने थोड़ी अंग्रेज़ी समझ ली होगी कि आज कार्डिनल कूट्स जो वो मेरी जगह पे गए सेंट पैट्स और मैं यहाँ पे आया हूँ. और वो क्यों? क्योंकि अगर मैं आज डायसिस ऑफ कराची को देखूँ तो 8 सितंबर की जो मुकद्दसा माँ की जो ज़ियारत सेंट एंथनीज चर्च से शुरू होती है, शुरुआत हुई. और आज भी मैं देख रहा हूँ इधर उधर से, पता नहीं कराची के कितने मुख्तलिफ इलाकों से आप सब बड़ी तादाद में आए हैं. ये यकीनन माँ की कशिश है, ये माँ का मौजज़ा है कि आज इतनी बड़ी तादाद में आप सब आए हैं. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं तो 5-6 साल 7 साल मैं मुल्तान में रहा. वहाँ पे भी मैंने मुकद्दसा माँ का मौजज़ा देखा. और आज भी मैं इन दिनों के दौरान अपने फादरों से बात कर रहा था. वो कह रहे थे कि आजकल हर रोज़ हमारे चर्चेस भरे हुए हैं, भरे हुए हैं. PIB कॉलोनी में फादर एडवर्ड जोसेफ मुझे बता रहे कि वहाँ पे भी नवीना चल रही हर जगह पे. बस मैं कहता हूँ ये माँ का मौजज़ा है, ये मुकद्दसा माँ की कशिश है कि हम सब यहाँ बड़ी तादाद में आए हैं.
आइए आज हम कलाम की तरफ चलते हैं ताकि हम गौर कर कुछ पैगाम कुछ आज सीख सके। थॉमस एडिसन अमेरिका में इजाद करने वाला था और उसने बहुत सी चीजें इजाद की, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा लाइट बल्ब। आजकल हमारे घरों में जो लाइट है, थॉमस एडिसन ने बहुत साल पहले उसको इजाद किया था। लेकिन थॉमस एडिसन अगरचे उसने बहुत सी चीजें इजाद की, जब वो छोटा था तो वो स्कूल जाना पसंद नहीं करता था और अपने टीचर से भी वो खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई में थोड़ा सा स्लो था और हर कोई उसको मजाक करता था कि इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं, यानी कि वो पागल है। एक दिन गुस्से में आकर वो घर वापस चला गया और माँ परेशान कि ये मेरा बेटा जल्दी क्यों आया। और जब अगले दिन वो स्कूल गई तो थॉमस एडिसन की टीचर ने माँ से कहा कि तेरा बेटा पढ़ने के लायक नहीं, इससे बेहतर है कि आप उसको घर में रखो। ये बात थॉमस एडिसन की माँ को बहुत तकलीफ लगी और उसने टीचर से कहा, ज़रूर मैं अपने बेटे को घर पे रखूंगी और मैं खुद उसको पढ़ाऊंगी। और आखिर में थॉमस एडिसन अमेरिका में वो ऐसा बड़ा शख्स बना कि इजाद पर इजाद वो चीज़ें बनाता रहा। और उसने एक वक्त में कहा कि जो कुछ मैं हूँ मेरी माँ की मोहब्बत और मेरी माँ की दुआओं की वजह से है। So there is a story about Thomas Edison, who when he was a young boy was considered mad, was considered mentally ill, and he was teased by his school friends, he was teased by his teachers. And one day when his mother went to the teacher to ask why her son had reached home, the teacher said, you know, your son is not capable for studies, you better keep him home. That is what she did, but she taught him at home. And Thomas Edison became one of those great persons in the world who created inventions after inventions, and the light bulb that we have in our house today goes back to his invention. Thomas Edison would say, all that I am is because of the love and faith of my mother. मसीह खुदा में मेरे अज़ीज़ों, आज जब हम मुक़द्दसा माँ की सालगिरह के लिए आए हैं, हमें याद रखने की ज़रूरत है कि बहुत कम ऐसे अनबिया है जहाँ पे हम उनका सालगिरह पैदाइश का दिन मनाते हैं। ज़्यादातर जब वो मर जाते हैं, क्योंकि वो अब्दी बादशाह में जाते हैं। सिर्फ 3 साल के दौरान हम अहम लोगों की सालगिरह मनाते हैं। सबसे पहले यीशु का सालगिरह 25 दिसंबर, यूहन्ना इस्तबागी का सालगिरह, उसकी पैदाइश का दिन, और मुक़द्दसा माँ का सालगिरह। और वो क्यों? क्योंकि ये 3 अशख़ास ऐसे हैं जो कि हमारे निजात के मंसूबे से बहुत गहरा ताल्लुक रखते हैं, कि उनकी पैदाइश हमारे लिए खुशी का बाइस है, क्योंकि यहाँ से हमारी निजात का रास्ता शुरू होता है। The birth of Mary is so important for us because it is the birth that begins our salvation. अगर आज हम मुक़द्दसा माँ की सालगिरह पर गौर करें, क्यों उसकी अहमियत, वो इस बात से है कि मुक़द्दसा माँ का दुनिया में आना इस बात की अलामत है कि खुदा की मोहब्बत
अब उनके वसीले से हम तक पहुंचने को था, और ये मोहब्बत का नाम यस्सु अल मसीह है। मुकद्दसा माँ से हमें यस्सु अल मसीह हम पाते हैं, ये तोहफा हमें दी जाती है, और इस मोहब्बत का वसीला देने वाली मुकद्दसा माँ। इसी वजह से मेरे अजीजों हम ये कह सकते हैं कि अगर थॉमस एडिसन की माँ ने उसको तब्दील किया, तो मुकद्दसा माँ ने हम सबको, इस पूरी कायनात को तब्दील की। किस तरह हाँ कह के अपने बेटे को हमें दे के। आज जिस बात पर, 3 नुकात पर मैं आपके साथ गौर करना चाहता हूं कि अगर हम मुकद्दसा माँ के जरिए से दुनिया को तब्दील करना चाहते हैं, दुनिया को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, if we want to transform the world like Mary did by bringing Jesus, then we have to follow the life of Mary. हमें ये मुकद्दसा माँ की जिंदगी पर थोड़ी देर गौर करना है, क्योंकि मुकद्दसा माँ की सारी जिंदगी बस एक नुक्ते पर बार बार घूमती है। The life of Mother Mary centers around just one principle: doing the will of God. खुदा की मर्जी करना। ये मुकद्दसा माँ की जिंदगी का खुलासा है, खुदा की मर्जी करना। सबसे पहली बात जिस पर हम गौर करेंगे, खुदा की मर्जी को जानना, knowing the will of God, खुदा की मर्जी को जानना। बाइबल मुकद्दस में पहले सैमुएल की किताब, उसके 3 बाब में एक खूबसूरत कहानी सैमुएल की, जब वो छोटा बच्चा था और वो हैकल में एली की खिदमत कर रहा था। और एक दिन जब वो सोया हुआ था कि अचानक उसने अपने नाम पुकारते हुए उसको सुनाई दी, सैमुएल सैमुएल। वो भाग के एली के पास गया और पूछने लगा, एली क्या आपने मुझे बुलाया? सैमुएल नबी ने कहा नहीं। एली ने कहा, सैमुएल नहीं, जाके सो जा। फिर थोड़ी देर बाद दोबारा सैमुएल सैमुएल। वो भागकर एली के पास गया, लेकिन एली ने कहा नहीं सैमुएल, मैंने तुझे नहीं बुलाया, सो जा। और ये 3री दफा हुआ। और फिर एली को समझ आ गई कि खुदा सैमुएल को बुला रहा है। और फिर उसने कहा, सैमुएल अगर अभी दोबारा तुम अपना नाम सुनो तो मेरे पास नहीं आओ, तुम वहीं खड़े होकर पुकारो, ए खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। और उस वक्त जब दोबारा सैमुएल नबी ने अपना नाम सुना, तो उस वक्त वो एली के पास नहीं गया, बल्कि खुद वहां खड़े होकर कहने लगा, ए खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। अगर हम मुकद्दसा माँ की जिंदगी को देखें, उसकी सारी जिंदगी इस आयत पर मबनी, ए खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरी बंदी सुनने के लिए तैयार। हम याद करें लूका की इंजील में वो आयत जो हमें बताती है कि किस तरह मुकद्दसा माँ कलाम सुनती थी। लूका लिखता है कि मुकद्दसा माँ इन सब बातों को अपने दिल में हिफ्ज करके उस पर गौर करती थी। ये है हकीकतन कलाम सुनना। और मुकद्दसा माँ आज हमें दावत देती है कि अगर हम दुनिया को तब्दील करना चाहते हैं, अगर हम अपना खानदान में सुलह सलामती लाना चाहते हैं, अगर हम चर्च में और ज़्यादा
जोश लाना चाहते हैं तो सबसे पहले कलाम को सुनना, क्योंकि तब ही हम खुदा की मर्जी सुन सकेंगे। और किस तरह? ऐ खुदावन फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। मुकद्दसा माँ सुनने की खूबसूरत अलामत है, क्योंकि लूका खुद हमें अपने कलाम में हमें बताता है कि मुकद्दसा माँ तमाम बातों को जो खासकर उनको समझ नहीं आती थी, वो अपने दिल में हिफ्स करके उस पर गौर करती थी। और आज हमारे लिए भी दावत है कि we must be ready listeners of God's words, of God's will. Because Mary, she stored up everything in her heart and she pondered upon them. Pondered. She thought about them, meditated upon them, contemplated upon them. The first point we learn from Mary. The second point we learn is not only listening to God's will, but the second is doing God's will. खुदा की मर्जी करना, सिर्फ सुनना नहीं, करना। सिस्टर जोसेफिन बकीता के बारे में एक कहानी बताई जाती है। सिस्टर जोसेफिन बकीता जब छोटी सी बच्ची थी, उसको दहशतगर्दों ने अगवा किया और बहुत बुरी तरह सलूक किया, मारा पीटा, उसके साथ बदतमीजी भी की गई थी। आखिरकार वो अपनी जान बचाने में कामयाब भाग गई और सिस्टरों ने जाके उसको पनाह दी हॉस्टल में। और वो सिस्टरों से इतनी मुतासिर हुई कि उसने अपनी ज़िंदगी सिस्टरों के लिए वक्फ की। वो नर्स बन गई और नर्स होते हुए बड़ी खिदमत की लोगों की, शिफा के नाते से। और बुढ़ापे में वो व्हीलचेयर पे आ गई, क्योंकि उनकी सेहत अच्छी नहीं थी, व्हीलचेयर पे थी। एक दिन एक बिशप साहब वहाँ पर आए थे पाकमास करने के लिए, और वो सिस्टर जोसेफिन को आप बहुत अच्छी तरह जानता था। जब उसने पाकमास ख़त्म की तो चाय के लिए वो बैठा था, तो उसने ऐसे ही बातचीत शुरू करने के लिए सिस्टर जोसेफिन से कहा, सिस्टर जी मुझे ये तो बताओ, पूरे दिन आप व्हीलचेयर पे होती है, आप पूरे दिन क्या करती हैं? तो सिस्टर जोसेफिन बड़ी तेज थी, उसने कहा, बिशप जी मैं वही करती हूँ जो आप करते हैं, खुदा की मर्जी। मेरे चीज़ों, सिस्टर जोसेफिन बकीता की इस बात में बड़ी गहराई है। वो व्हीलचेयर पे थी, बहुत कम कुछ कर सकती थी, लेकिन वो कहती मैं हर रोज खुदा की मर्जी करती हूँ। और मुकद्दसा माँ को देखे जब फरिश्ता जिब्राइल ने उससे पूछा, क्या तू खुदा की माँ बनने के लिए तैयार? उसका जवाब, देख मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक। लॉर्ड whatever is your will, I am ready to do this. Be it done to me according to thy word. मुकद्दसा माँ हमारे लिए सबसे बेहतरीन मिसाल है कि सिर्फ कलाम और खुदा की मर्जी सुनना काफ़ी नहीं, उस पर अमल भी करना। और आखिरी बात, लिविंग गॉड्स विल, कि हम खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में नक्श करें, टू लिव गॉड्स विल। When I was consecrated a bishop on the 15th of August 2015, जब मैं बिशप बना 15 अगस्त 2015, तो 14 अगस्त रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं बड़ा परेशान, टेंशन में था। तो मैंने 1-2 बजे रात की, तो मैंने अम्मी को कॉल किया। तो अम्मी ने जैसे फ़ोन उठाया, तो अम्मी पता चल गया कि तो सुबह सवेरे 1-2 बजे पाकिस्तान में, मेरी अम्मी कनाडा में थी, तो कहने लगी खैरियत तो है? हाँ अम्मी थोड़ा नर्वस, थोड़ी सी बातें वगैरह की, इधर उधर की। और फिर जब मैं थोड़ी सुकून मुझे मिली, तो मैंने बोला ठीक है अम्मी, खुदा हाफिज़। तो अम्मी ने फ़ोन रखने से पहले बस अचानक उसने मुझे थोड़ी सी एडवाइस दी। She gave me a little advice. She said, Benny,
बी हम्बल. उसने कहा बेनी हलीम रहो. मुकद्दसा माँ की सारी जिंदगी इस बात पर थी, क्योंकि वो जानती थी कि मुझे हर वक्त खुदा की मर्जी पर अमल करना है, और किस तरह, हलीमी के जरिए से. और आज अगर हम भी हर वक्त मुकद्दसा माँ की तरह खुदा की मर्जी के साथ हम हमेशा रहना चाहते हैं, बस हमें मुकद्दसा माँ की हलीमी को देखना है. और हलीमी वाज़े है कि वो अपने आप को आगे नहीं, हमेशा अपने आप को पीछे. वो अपने बारे में नहीं, दूसरों के बारे में सोचती थी. और अगर हम यही बात अपने अंदर रखें तो हकीकतन हम खुदावन की मर्जी हमेशा उसको अमल में लाएंगे. मेरे अजीज़ों, आज हम मुकद्दसा माँ की सालगिरह मनाने के लिए आए हैं. वो माँ जिसकी पैदाइश के वसीले से हमें प्यार यीशु मसीह, हमें मोहब्बत यीशु मसीह के शक्ल में हमें दी गई है. आज मुकद्दसा माँ वही बेटा हमें देना चाहती है, और इस बेटे को कबूल करने के लिए हमें खुदा की मर्जी पर अमल करना है. खुदा की मर्जी को जानना है, करना है, और हमेशा उसको बरकरार अपनी ज़िंदगी में बरकरार रखना है. खुदावन से आज दुआ करें कि आज जब हम मुकद्दसा माँ की विलादत की ईद मनाते हैं, कि मुकद्दसा माँ की सिफारिशों की बदौलत हम यीशु मसीह की मर्जी को हमेशा अपनी ज़िंदगी में पूरा करें. मसीह खुदावन के वसीले से आमीन.